پر اسرار اور مافوقل فطرت واقعات، سچائی کا پرستار اور قوت ایمان کی پختگی کا مالک شوکت حسین، جگدوش طلسماتی دنیا کا سب سے بڑا اور منفی کردار، کالی بولی نامی طلسماتی سرزمین پر ہونے والے انوکھے اور پر اسرار واقعات قارئین کے لیے ایک انوکھی طلسم ہوش شربا سے کم نہیں۔ خیر و شر کے درمیان ہونے والی جنگ کے ناقابل یقین اور سنسی خیز واقعات کا سنگم، کھنڈر۔ حوالدار جی، میں نے آپ کی ساری بات سن لی ہے، آپ ایک ذرا میری بھی عرض سن لیں۔ میں نے اس سے گفتگو پورے ہونے کے بعد متحمل سے لہجے میں کہا۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے دوبارہ اپنی کرسی پر جا بیٹھا اور پھر میری طرف نظرانہ نظروں سے گھورتے ہوئے پھنکارا، بولو۔ رانی کو اغوا ہوئے آج پورا 1.5 ماہ ہو چکا ہے۔ اس کی بازیابی کے لیے آپ نے اب تک کیا کیا ہے؟ جس نے رپورٹ درج کروائی ہے اغوا کی، اسے کہو کہ آ کر یہ سوال کرے مجھ سے، اب جاؤ یہاں سے۔ وہ رکھائی سے بولا۔ مجھے تیش تو آیا، مگر میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، مگر حوالدار جی بس اب جاؤ، ورنہ حوالات کی سیر کرا دوں گا تمہیں۔ وہ تہدیدی لہجے میں گھور کر بولا۔ حوالدار جی، رپورٹ کروانے والا میرا تایا ہے اور میں اس کا بھتیجا ہوں۔ وہ بوڑھا آدمی تھانے کے آخر کب تک چکر کاٹے گا؟ میں نے بالآخر اپنی بات پوری کر کے ہی دم لیا۔ اس نے غصے سے میز پر رکھا ہوا سیاہ رول بجایا اور دھاڑ کر بولا، اگر اتنا ہی اپنے بوڑھے تایا جی کا خیال تھا تو پھر اتنا دن سے کہاں مرے ہوئے تھے؟ میں کہتا ہوں سیدھی طرح سے دفع ہو جاؤ، ورنہ۔ اس نے تہدیدی انداز میں دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں اور کس سے جا کر فریاد کروں۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں سیدھا گھر پہنچا اور تایا ابا سے بولا، ابا، آپ نے جن لوگوں کے ساتھ تھانے جا کر رانی کی اغوا کی رپورٹ لکھوائی تھی، مجھے ان کے نام بتاؤ، میں ان لوگوں کے ساتھ تھانے جانا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے انہیں حوالدار کریم داد کی بے رخی کے بارے میں بھی بتایا اور میں نے دیکھا کہ میری بات پر تایا ابا کے چہرے پر ذہنی کرب کے آثار ابھرے اور وہ پس مزدار لہجے میں بولے، پتر، گاؤں کے لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ہمیں جادو ٹونے والے قبیلے سے تعلق رکھنے والے سمجھنے لگے ہیں اور سیدھے منہ سے بات ہی نہیں کرتے۔ میں تو اکیلا ہی روتا پیٹتا رانی بیٹی کی اغوا کی رپٹ کروانے گیا تھا۔ تایا ابا کی بات پر جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں بھینچ دیا۔ مجھے اب حوالدار کریم دادا کی بے رخی و بے اطلاعی کی وجہ سمجھ میں آنے لگی تھی اور مجھے گاؤں والوں پر بھی غصہ آنے لگا، جنہیں ہماری طرف سے شدید غلط فہمی ہو گئی تھی۔ بلکہ غلط فہمی کیا، یہ تو کھلی جہالت تھی۔ بجائے یہ کہ وہ ہماری مدد کرنے کے الٹ ہم سے نفرت کرنے لگے تھے، اور یہ سب اس دلیل جگدوش کی وجہ سے تھا جس نے ہمیں کہیں کا نہ رکھا تھا۔ اگرچہ میں اس میں رانی کی بے وقوفی بھی شامل تھی، نہ وہ میری محبت حاصل کرنے کے چکروں میں جگدوش جیسے شیطان کا اعلیٰ کار بنتی، تاہم یوں ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ نیند خود رانی بھی بیچاری جانے اب تک کس حالت میں تھی۔ ایک جوان جہان کنواری لڑکی کا اتنے عرصے غائب رہنا معمولی بات تو نہیں۔ مجھے اب کبھی رانی پر تیش آتا تھا اور کبھی ترس آتا اس پر، اور اس نے اپنی نادانی کی وجہ سے ہمیں تو مصیبت میں ڈالا ہی تھا، اور مگر خود بھی وہ برباد ہو گئی۔ میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں نخوت اور آنا کے مارے ہوئے چودھری برادران ابھی تک میری جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ جگدوش کی طرف سے بھی ایک ازلی پریشانی میرے گلے میں نتھی تھی۔ سوہنی کے سر پر اس کا خطرہ الگ منڈلا رہا تھا۔ اس وقت تو میں نے جگدوش کی دھمکی کو قابل اعتراض نہیں جانا تھا، مگر اب گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی دھمکی کے الفاظ ہتھوڑوں کی طرح میرے دماغ پر ضربیں لگا رہے تھے۔ مجھے اس کی طرف سے بھی غیر معمولی محتاطی اور ہوشیاری کی ضرورت تھی۔ میں چومکھی حالات کا بڑی بری طرح شکار ہو رہا تھا۔ بہرطور میں گھر سے نکلا اور سیدھا مسجد امام پیش امام مولوی تمیز الدین کے ہاں پہنچا۔ پہلے وہ مسجد کے حجرے میں ہی رہتے تھے، اب مسجد کے قریب ہی انہوں نے ایک کمرے اور صحن کا چھوٹا سا گھر تعمیر کر لیا تھا، مگر وہ مجھے مسجد میں ہی مل گئے۔ مولوی صاحب پورے گاؤں میں وہ شخص تھے جو مجھے سمجھتے تھے اور میرے مسئلے کو بھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مولوی صاحب فطرتاً نیک نفس اور فراغ دل انسان تھے۔ مجھ سے بڑے پرتپاک انداز میں ملے اور میں نے انہیں شروع سے آخر تک اپنی ساری کتھا سنا ڈالی۔ الحمدللہ وہ اپنی ریش پر دائیں ہاتھ پھیر کر بولے، بیٹا، تم شیطانی قوتوں کے خلاف لڑ رہے ہو، اور اللہ کا بھی یہ حکم ہے کہ شیطان اور شیطان کے پجاریوں کی بیخ کنی کرتے رہو،
کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد حصول مسرت نہیں بلکہ تکمیل انسانیت ہے۔ اللہ تمہیں اپنے نیک مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ میں نے زیر لب کہا اور پھر بولا، مولوی صاحب وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر مجھے افسوس ہے کہ اپنے گاؤں کے لوگوں پر ہو رہا ہے، انہیں ہماری طرف سے شدید غلط فہمی ہو گئی ہے۔ وہ مسکرا کر بولے، بیٹا سچائی کی راہ میں چلنے والوں کو بعض اوقات اپنے ہی لوگوں کی مخالفت برداشت کرنی پڑتی ہے، پر تم دل چھوٹا نہ کرنا۔ نہیں مولوی صاحب، مجھے ذرا باتوں کی پرواہ تو نہیں، مگر تایا تائی نے رانی کی گمشدگی کو اپنے دل پر لے لیا ہے۔ ہاں یہ دکھ تو ان بیچاروں کو جھیلنا ہی ہوگا۔ مولوی صاحب ایک سے گزارش ہے آپ سے۔ میں نے فوراً حرف مدعا بیان کرنے کی غرض سے کہا، ہاں شوکت بیٹا۔ مولوی صاحب وہ خبیث حوالدار کریم داد ان دونوں چودھری برادران سے ذرا دب رہا ہے، یا ایسا درون خانہ رشوت کی عوض کر رہا ہے کہ وہ رانی کی بازیابی کے سلسلے میں کوئی خاص قانونی کارروائی کرتا نظر نہیں آیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ گاؤں کے چند معتبر لوگوں کے ساتھ تھانے تشریف لے جا کر حوالدار کریم پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں، وہ رانی کو بازیاب کرنے کے سلسلے میں ذرا دلچسپی لے تو کچھ نتیجہ نکل سکتا ہے۔ میری بات پر مولوی صاحب کی بارش چہرے پر چند ثانی کے لیے پرسوچ تاثرات پھیل گئے، وہ خاموش سی ہو گئے تھے۔ پھر میں بھی ان کے بولنے کے انتظار میں خاموش رہا، اور پھر ذرا دیر بعد وہ پرخیال ہمکاری بھر کر بولے، پتر شوکت بات یہ ہے کہ گاؤں والے واقع تم سے اور رانی کی طرف سے زبردست بدگمانی کا شکار ہیں۔ حالانکہ تمہارے تایا اکبر خان کی بھی گاؤں میں بڑی عزت تھی، مگر ان کالے منتروں اور جادو ٹونے کی وجہ سے ان کی اپنی بھی عزت جاتی رہی ہے۔ یوں تو میں نے گاؤں والوں کو اپنے طور پر سمجھانے کی بہت کوشش کی ہے، مگر وہ نہیں مانتے۔ یہ تو شکر ہے کہ انہوں نے خاموشی اور سب سے قطعت الگ کر رکھا ہے، ورنہ وہ تو تمہیں اور اکبر خان کو گاؤں سے بے دخل کرنے پر تلے بیٹھے تھے۔ میرے سمجھانے بجھانے پر انہوں نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ بڑی مہربانی مولوی صاحب آپ کی، میں نے ہولے سے کہا۔ وہ میری افسردگی کو سمجھتے ہوئے ازراہ شفقت میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، پتر شوکت تو اپنا دل چھوٹا نہ کر، جھوٹ کے دن تھوڑے اور سچائی کی عمر طویل ہوتی ہے۔ آج تیری ستائی کو جھوٹ سمجھنے والے انشاءاللہ اسے سچ مان کر تمہاری اتنی توقیر کریں گے کہ تمہارا دکھوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ مولوی صاحب کی باتوں سے میرے ٹوٹے ہوئے دل کو ذرا ڈھارس بندی، اور میں انہیں سلام کر کے واپس آ گیا۔ اس کے بعد میں گھر آنے کی بجائے چودھری حشمت علی خان کی حویلی کی طرف چل دیا۔ مجھے یقین تھا کہ اس وقت حویلی کی بجائے اپنے ڈیرے پر ہی موجود ہوں گے، جو ان کی حویلی سے زیادہ دور نہ تھا۔ میں اپنے راستے پر چلا جا رہا تھا اور اس وقت مکئی کے کھیتوں کے درمیان بڑی ٹیڑھی میڑھی کچی پگڈنڈی پر چلا جا رہا تھا کہ اچانک مجھے سامنے گرد و غبار کے بگولے فضا میں اڑتے نظر آئے۔ شاید کوئی گاڑی تھی جو خاصی تیز رفتاری کے ساتھ سامنے سے دوڑی چلی آ رہی تھی۔ میں ذرا ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ جیپ تھی، کچھ دیکھی والی لگ رہی تھی۔ قریب آئی تو میں بری طرح چونک پڑا۔ یہ جیپ بغیر ہڈ کے تھی، یعنی آہنی پائیوں کا جنگلہ نصف تھا، مگر اس پر کینوں سے ہڈ نہ تھا۔ یہ جیپ ان دونوں فسادی چودھری برادران کی تھی۔ وہ دونوں سامنے کی نشستوں پر براجمان تھے۔ چودھری نیاز کے ہاتھوں میں اسٹیئرنگ تھا، عقبی سیٹوں پر ان کے 3 رائفل بدستہ کرندے براجمان تھے۔ جیپ ایک زبردست جھٹکے سے قریب آ کر رکی اور وہ سب مجھے گھورتے ہوئے کدھر کوڑے مار کر جیپ سے اتر پڑے۔ میرا دل سینے میں بری طرح دھڑکنے لگا۔ ان کے تیور مجھے ٹھیک نظر نہیں آ رہے تھے۔ دونوں چودھری برادران خشمناک نظروں سے گھورتے ہوئے میرے قریب آ کر رکے، اور پھر چودھری پرویز نے مجھ سے قہر آلود لہجے میں کہا، اوئے کدھر فرار تھا تو اب تک؟ میں نے اپنے اندرونی کفیات پر قابو پا کر نڈر لہجے میں کہا، میں شہر گیا تھا۔ شہر گئے تھے یا ہمارے ازلی دشمن چودھری حشمت علی کے خان کے ساتھ ہمارے خلاف کوئی نیا گٹھ جوڑ کر رہے تھے؟ چودھری نیاز نے کاٹ دار لہجے میں کہا، اور میں نے متحمل لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، دیکھیے چودھری صاحب، آپ کو میری طرف سے سخت غلط فہمی ہے۔ رب دی سوں میں تو چودھری حشمت علی خان کو جانتا بھی نہیں ہوں۔ میں ایک غریب لڑکا ہوں جی، بھلا چودھریوں سے میرا کیا میل؟ میری بات پر دونوں چودھری بران نے ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھا، اور پھر چودھری پرویز مجھے گھور کر بولا، اگر چودھری حشمت علی خان سے تیرا کوئی گٹھ جوڑ نہیں تو پھر ہماری بات کیوں نہیں مانتا تو؟ کیسی بات جی؟ زیادہ نکا کاکا بننے کی کوشش نہ کر، سمجھا تو؟ چودھری نیاز غصے سے داڑا، ہم تیری بات کا تب ہی اعتبار کریں گے جب تو چودھری حشمت علی کے خان کے خلاف پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کروائے گا کہ تو نے اس کے ہی کہنے پر ہماری سونی بپو چودھری عالم خان کا قتل کیا ہے۔ اوے جی، اس طرح تمہیں بیت موت مارا جاؤں گا، میں نے مسمی صورت بنا کر کہا۔ تو کیا ہم تجھے زندہ چھوڑ دیں گے؟ چودھری نیاز نے مجھے گھورتے ہوئے گڑا کر کہا، وہی بات سمجھ ہماری،
चौधरी परवेज ने मुझसे कहा, हम तुझे बचा लेंगे, ये हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। बस एक बार चौधरी हशमत के गले में फांसी का फंदा पड़ जाए। माफ करना चौधरी साहब, मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कोई जुर्म नहीं किया और मैंने बिल आकर हतमी जवाब से उन्हें नवाज ही दिया। वो दोनों 16 बार नजरों से मेरी तरफ घूरने लगे। उन दोनों की बगलों से होलिस्टर झूल रहे थे। फिर यक बारगी उन दोनों ने एक अपने चर्मी होलिस्टों से पिस्तौल निकाल लिए और मेरा दिल कंपनियों में धड़कने लगा। अचानक मैंने उन दोनों को चौंकते हुए देखा। वो मेरी अक्ल में देखकर एक लम्हे को ठटके थे और मैंने भी गैर इरादी तौर पर उनकी ठटकी हुई नजरों की सीध में अपने अक्ल में मुड़कर देखा और एक खास कार तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई हमारी तरफ आ रही थी। फिर वो करीब आकर रुक गई और उसके अंदर से एक भारी भरकम और लंबे तलंबे शख्स को देखकर मेरे चेहरे पर कदरे तमानियत फैल गई, मगर मैं थोड़ा सा मतवश्शी भी होने लगा। इस पक्की उम्र वाले सुर्ख सफेद शख्स ने सफेद कड़कड़ाती हुई शलवार कमीज पहन रखी थी। ये चौधरी हशमत अली खान था। उसकी बाएं बगल से गोलियों की पट्टी की सूरत में एक होलिस्टर भी झूल रहा था। उसके हमरा 4 मसला कार परवाज भी उतर आए थे। अब दोनों दरीना दुश्मन आमने सामने थे और मैं उन हाथियों के दरमियान में था और बिलखसूस मेरे लिए ये बहुत ही मखदूश और संगीन सूरत हाल थी। चौधरी हशमत अली ने एक नजर मेरे चेहरे पर डाली और फिर उन्होंने दोनों चौधरी बदरान की तरफ घूरने लगा। वो दोनों भी उस पर बरमाती हुई नजरें जमाए हुए थे। चौधरी हशमत अली खान के इत्तफाकन और बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर पर यहाँ पहुंच जाने से अलबत्ता मुझे किसी कदर इन दोनों खार खाए चौधरी बरादरान से अपनी गुलू खलासी होने की उम्मीद हो चुकी थी। चौधरी हशमत अली खान शायद शहर से लौटा था और अपने गांव की तरफ ही जा रहा था, क्योंकि उसकी जागीर का इलाका उधर से ही गुजरता था। मैंने चौधरी हशमत अली खान को सलाम किया तो मुझसे बारोब लहजे में बोले, क्यों काका शोके, तू इधर क्या कर रहा है? जी चौधरी साहब, मैं आप ही से मिलने आ रहा था कि मैंने उनसे ये कहकर एक नजर चौधरी बरादरान की तरफ देखा और दानिस्ता अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया तो इन दोनों चौधरी बरादरान में से चौधरी नियाज ने चौधरी हशमत अली से तंजिया लहजे में कहा, क्यों हशमत अली खान, क्या आप इसके साथ मिलकर हमारे खिलाफ कोई नई साजिश तैयार करने वाले थे? तुम इसकी तंज की जहरीली काट को महसूस करके चौधरी हशमत अली एक बरमाती हुई नजरें चौधरी नियाज पर डाली और फिर चंद कदम उसके करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर गुर्राहट से मुशाबा आवाज में बोला, ओए तुम्हारी मत मारी गई है या मेरे अपने आदमी मर गए हैं जो एक गरीब काके को अपना आलेकार बनाऊंगा। और हाँ, अपने दिलों से ये गलत फहमी निकाल फेंको कि मैंने तुम्हारे बाबा का खून किया है। मैं चौधरी आलम खान को इज्जत की निगाह से देखा करता था। चौधरी हशमत, हमें पूरा यकीन है कि हमारे सोहने अब्बे का कत्ल तूने ही करवाया है। अच्छा चलो फिर जैसा तुम समझो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। बिल आकर चौधरी हशमत अली ने लापरवाना लहजे में कहा और फिर मुझसे बोला, चलो काका शौकत, मेरी गड्डी में बह जा। नहीं चौधरी, ये हमारा मुजरम है, तू इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। चौधरी नियाज ने ठेले लहजे में कहा तो चौधरी हशमत अली खान के चेहरे पर सन्नाटे किसी कफियत तारी हो गई और फिर वो उसे घूर कर गूंजदार आवाज में बोला, ओए ये जिसका भी मुजरम है, मगर इस वक्त ये मुझसे मिलने आ रहा था। तुम्हें कोई एतराज है तो जाकर कानून का दरवाजा खटखटाओ। चल ओए, तूने सुना नहीं, मेरी गड्डी में बैठ जा काका। चौधरी हशमत अली ने आखिर मुझे भी घूर दिया और मैं खामोशी से उनकी कार की तरफ बढ़ गया तो मेरी ठटकी हुई समातों में चौधरी परवेज के ललकारती हुई आवाज गूंजी, चौधरी हशमत अली खान, तू ये अच्छा नहीं कर रहा। ये मत भूल के तू इस वक्त हमारी जागीर पर खड़ा है। ओए चल जा, किसी और को जाकर ये गीदड़ भभकियां दे, चल। चौधरी हशमत अली खान का भी खून गर्म हो गया और मैंने खतरे की बू महसूस की। मैं कार के करीब जाकर जरा रुका और अक्ल में मुड़कर देखा तो चौधरी बरान समेत उनके तीनों करिंदे ने हम पर पिस्तौलें निकाल कर तान ली। उधर चौधरी हशमत अली के चारों आदमियों ने भी अपनी राइफलें और बंदूकें उन पर सीधी कर ली और चौधरी हशमत के आगे ढाल बनकर खड़े हो गए थे। और फिर उनमें से एक ने चीख कर चौधरी बरादरान से कहा, खबरदार, अगर किसी ने अब हमारे चौधरी जी का रास्ता रोकने की कोशिश की तो उसके ललकार ने उन सब को सुम्मन बुकमन खड़ा रहने पर मजबूर कर दिया। फिर उसके बाद हम सब कार में सवार हो गए और मेरा मतवश दिल साए साए करती कंपनियों पर धड़कने लगा। चौधरी हशमत अली खान ने ड्राइविंग सहूलत खुद संभाल ली और मैं अकबी सीट पर बैठ गया। फिर जैसे ही कार चौधरी बरादरान के करीब से होकर अभी जरा ही दूर गई थी कि अचानक सन्नाटेदार ठटकी हुई फिजा में गोलियों की खौफनाक तरतराहट उभरी। चौधरी बरादरान और उनके तीनों कारिंदों ने हमारी कार पर फायरिंग कर डाली थी। कई गोलियां कार की बॉडी में जटाजट की आवाज से पीसत हो गई और कार का अकबी शीशा भी एक धमाके से चकनाचूर हो गया।
मेरे दाएं बाएं बैठे चौधरी हशमत अली खान के 2 आदमियों ने भयानक चीख मारी और उनके सर ढलक गए। उनकी गर्दनों के अकबी हिस्से में शायद गोलियां लगी थी। शुक्र था कि मुझे गोली नहीं लग सकी। चौधरी हशमत अली की हलक से एक तैश भरी गुडाहट उभरी और उसने फौरन कार को ब्रेक लगा दिए और मैं नीचे को झुक गया था। गोलियों की तरतराहट जारी थी। अब चौधरी हशमत अली खान और उसके बाकी बचे खुचे 2 आदमियों ने कार से उतरकर उसकी आड़ में जवाबी फायरिंग शुरू कर डाली। मैं अभी तक कार की अकबी सीट पर लेटा हुआ था। धुआंधार फायरिंग का तबादला शुरू हो चुका था और मेरा दिल बेतहाशा धक धक कर रहा था। अचानक फिर मुझे चौधरी हशमत अली खान के एक और आदमी की करीह अंगेज चीख सुनाई दी और मेरा दिल धक से रह गया। गोया अब चौधरी हशमत खान के साथ सिर्फ एक आदमी बचा था और मैंने अब इस जंग में कूदने का फैसला कर लिया और चौधरी हशमत की एक मुर्दा साथी की राइफल और गोलियों की पट्टी उठाई और बेएहतियात कार का दरवाजा खोलकर बाहर रेंग आया। मुझ पर गोलियों की बौछार पड़ी और मैं भुरभुरी मिट्टी वाली जमीन से चिपक कर रह गया। मुझे अपने चेहरे के करीब से गुजरती सनसनाती गोलियों की झपक साफ सुनाई दी और मैं बाल बाल बचा था। मैंने राइफल को सीधा किया और लेटे लेटे फायरिंग की सिमत देखा तो मुझे चौधरी बरादरान की जीप नजर आ गई जिसकी अक्ब में छुपे हुए हम पर फायरिंग कर रहे थे। अभी तक उनके 3 कारिंदों में से कोई भी हलाक ना हुआ था, जबकि उधर चौधरी हशमत अली खान के 3 आदमी दुश्मनों की गोलियों की भीड़ चढ़ चुके थे। और तब फिर मेरे अंदर पहली बार इन दोनों अखड़मदार चौधरी बरादरान के खिलाफ नफरत का लावा खिल उठा और फिर मैंने भी वहीं भरी मिट्टी वाली जमीन पर लेटे लेटे उनकी जीप पर पूरा ब्रस्ट फायर कर डाला और फिर तेजी से करीब की झाड़ियों में रेंग लिया। अचानक दोनों की तरफ से फायरिंग का सिलसिला मौकूफ हो गया और मैंने खुद झाड़ियों की ओर से जीप की तरफ देखा। वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था और फिर मैंने जरा मुड़कर कार की तरफ देखा तो चौधरी हशमत और उनका अकलौता आदमी कार की आड़ से उबड़कर इस पार देखने लगे और तब मुझे दुश्मन की मकारी का अंदाजा हुआ जब नामालूम सिमत से अचानक 12 गोलियों की समा खराश तरतराहट उभरी और मैंने दोनों को चीखे मारते जमीन बोस होते देखा और मेरा दिल धक से रह गया और दिमाग जोशो गैस के मारे सुलग उठा और मैंने फौरन अपना सर जरा उठाकर फायरिंग की सिमत देखा तो मुझे चौधरी बरादरान के 2 कारिंदे नजर आए। मैंने आओ देखा ना ताओ उनका निशाना लिया और लिबलिबी दबा दी। मेरी राइफल ने एक खूनी कहका उगला। वो दोनों खबीस कारिंदे हलक के बल जिगर पास चीखे मारकर लहराए और जमीन बोस हो गए और मैं फुर्ती से रेंग कर चौधरी हशमत की तरफ बढ़ा तो मैंने बेख्तियार सुकून की सांस ली। वो जिंदा थे मगर जख्मी हालत में और उनके दाएं बाजू में गोली लगी थी, जबकि उनका आखिरी साथी हलाक हो चुका था। मैंने आगे बढ़कर चौधरी हशमत खान को संभाला तो वो होश में थे। चौधरी साहब आप ठीक तो होना? काका तू भाग जा वरना तुझे भी बेगुनाह मार डालेंगे। चौधरी हशम ने अपनी तकलीफ को दांतों तले भींच कर मुझसे कहा तो मैं पुरजोश कतिये से बोला, नहीं चौधरी साहब, मैं आपको इन बुज़दिल गीदड़ों के नगरी में छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगा। अभी मैंने इतना ही कहा थे अचानक मुझे करीब की झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी और मैं बिजली की सी फुर्ती के साथ मुड़ा तो चौधरी परवेज उसके एक कारिंदे को झाड़ियों से उबरते देखा और मैंने फौरन राइफल का रुख उनकी तरफ मोड़ा और वो दोनों ठटके और मैंने उधर लिबलिबी दबा दी। कारिंदे की पेशानी उड़ गई और आवाज निकले बगैर वो ढेर हो गया, जबकि चौधरी परवेज जख्मी होकर झाड़ियों में ही बेसुध गिर पड़ा। मैंने चौधरी हशमत अली खान को सहारा दिया और उकाबी नजरों से गिरदो पेश का जायजा लेते हुए उन्हें संभाले कार का अकबी दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर बिठा दिया और खुद जल्दी से ड्राइविंग सीट संभाल ली। मैंने इससे पहले कभी भी कार नहीं चलाई थी मगर मुझे ट्रैक्टर वगैरह चलाना आता था। चुनांचे मैंने जल्दी से कार स्टार्ट की और गियर बदलकर एक्सीलेटर दबाता चला गया। कार का इंजन जोर से गुराया और एक तूफानी झटके के साथ उछलकर कार आगे बढ़ी और कच्चे नाहमवार रास्ते पर अंधी तूफान की तरह दौड़ने लगी। वे काके तू वड्डा बहादुर हो, जीदार है। जरा देर बाद चौधरी हशमत अली खान ने अपने मखसूस लहजे में मेरी बहादुरी पर तबसरा किया। बिला शुबा एक कदरदान और जिंदा दिल आदमी था। चौधरी साहब, मैंने भी इनके कारिंदों से खूब बदला लिया है, मैंने जवाबन कहा। शाबा, मैं तो कहता हूँ कि इनका भी सफाया करके ही जाते हैं। गुड, मोड़ वापस। अचानक चौधरी हशमत खान ने कहा तो मैं बोला, चौधरी साहब जैसा आपका हुक्म हो। तब फिर अचानक मैंने अकबी मंजर पेश करने वाले आईने में देखा तो यकदम चौंक पड़ा। हमारी तवक्को में चौधरी बरादरान की जीप दौड़ी चली आ रही थी। मैंने जहरीली मुस्कुराहट से कहा, लो चौधरी साहब, शिकार खुद आ रहा है। ठीक है काके, तू गड्डी को रोक दे। मैदान जंग से भागना हमारी शान नहीं। और मैंने ऐसा ही किया और फौरन एक वीरान झुंग में कार रोक ली और दरवाजा खोलकर बाहर उतर आया। चौधरी हशमत अली खान ने भी जख्मी होने के बावजूद
कार से उतरने में सुस्ती नहीं दिखाई थी। अब उनके हाथों में भी राइफल नजर आ रही थी, जो शायद अकबी सीट पर मौजूद अपने दोनों साथियों की लाशों में से एक ही थी, क्योंकि दूसरे की मेरे पास थी। हम दोनों झाड़ियों में आ गए। दुश्मनों ने शायद हमें दूर से ही कार से उतरते देख लिया था और उन्होंने अपनी जीप वहीं रोक ली और मैंने और चौधरी हशमत ने उन्हें जीप से उतरने का मौका दिए बगैर ताबड़तोड़ फायरिंग कर डाली। दुश्मन पर हमारी जीदारी का खातर खवा असर हुआ और वो फौरन जीप रिवर्स करके भागने पर मजबूर हो गया था। भाग गए बुज़दिल कहीं के, चौधरी हशमत ने जहर आलूद लहजे में कहा। तो मैंने उनसे कहा, चौधरी साहब, मेरा ख्याल है कि अब हमें वापस ही चले जाना चाहिए। ठीक है काका, वो होले से बोले और उसके बाद हम दोबारा अपनी कार में आन बैठे। हालात की एक गैर मुतवक्का और अचानक कशाकशी ने मेरे असाब मुजमल से काट डाले थे, मगर मैं कच्चा खिलाड़ी ना था, लिहाजा चौधरी हशमत अली खान की हवेली पर पहुंचकर ही दम लिया। हमारी कार और चौधरी हशमत अली खान की हालत देखकर हवेली में ही नहीं बल्कि पूरे ग्राम में कहराम मच गया। चौधरी के आदमियों की तादाद में भी कमी ना थी। वो है ही नहीं बल्कि पूरे गांव मुश्तिल हो गया था। वो अपने वडेरे चौधरी पर कातलाना हमला करने वाले उन चौधरी बरादरान को इस वक्त मजा चखाना चाहते थे, मगर चौधरी हशमत अली खान मुस्तकिल मजाज और समझदार आदमी थे। उन्होंने बेमुश्किल उन्हें रोका और उसके बाद चौधरी का बड़ा बेटा खावर अली जल्दी से गांव के एक डॉक्टर को बुला लाया। शुक्र था कि गोली हड्डी में ना लगी थी, सिर्फ बाजू का गोश्त छीद कर निकल गई थी। बहरतौर डॉक्टर ने उनकी मरहम पट्टी कर दी। चौधरी हशमत अली खान के 3 बेटे थे, 2 छोटे शहर में तालीम हासिल कर रहे थे, जबकि बड़ा बेटा खावर अली उनके साथ रहता था और जमीनों और दीगर मामलात में उनका हाथ बटाया करता था। वो शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था। उसकी उम्र 35 के पेटे में रही होगी। ये लोग सब हवेली से मुल्हिक बैठक में मौजूद थे। मैं अपना मसला बयान करने चौधरी हशमत अली खान से मिलना चाहता था, मगर अब उन्हें खुद तकलीफ में देखकर सर दस्ते चुप रहा। लेकिन चौधरी साहब की ये भले मानती थी कि उन्होंने जरा देर बाद खुद ही मुझसे पूछ लिया, वो काके तू बता मुझसे क्यों मिलना चाहता था। उनके इस्तफार पर मैंने कहा कि चौधरी साहब बस रहने दें, फिर कभी सही। नहीं हुए इस वक्त बता, क्या बात करना चाहता था तू मुझसे? ये झगड़े तो हमारे घर की लौंडियां हैं। हाँ पुत्र, दस मुझे। वो जैसे आखिर में मुझे कुछ काटते हुए बोले। चौधरी साहब, रानी को गवाचे महीना हो चुका है। मैंने जब थाने गया तो हवालदार करीम दाद उल्टा मुझ पर ही गर्म हो गया। कहने लगा कि हमारी मर्जी के बयान पर दस्तखत करो। मैंने और रानी ने आपके कहने पर चौधरी आलम खान का खून किया है, वरना वो मुझे दोबारा अंदर कर देगा। चौधरी नियाज और परवेज भी मुझसे यही चाहते हैं और मैंने बिल आकर उन्हें सारी बात बता दी, जिसे सुनकर चौधरी हशमत अली खान के चेहरे का रंग मुतगय्यर सा हो गया और फिर उसकी जगह तैश बिलाखेजी ने ले ली और वो उसके लहजे से गुस्से से बड़बड़ाए। इस हवालदार की ये जुर्रत, चल तो अभी मेरे नाल थाने चलकर निपटते हैं। नहीं चौधरी साहब, अभी आप रहने दें, आपके हालात सही हो जाएं तो बाद में। वे हमारे हालात ऐसे ही रहते हैं और वैसे भी हमने अपनी रिपोर्ट लिखवानी है। चौधरी हशमत अली खान ने मेरी बात काट कर कहा और उठ खड़ा हुआ। अब्बा जी, मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। उनका बेटा खावर भी उठ खड़ा हुआ। उसके बाद आनन फानन 2 गाड़ियों और 8-10 घोड़ों पर मुश्तमिल मसला अफराद का ये काफिला रवाना हुआ और सीधा पहुंचकर ही दम लिया। मुझे खदशा था कि कहीं एक बार फिर चौधरियों के साथियों में दोबारा जंग ना छिड़ जाए, मगर थाना खाली था। अलबत्ता हवालदार करीम दाद अपने कमरे में मौजूद था। वो मुझे और चौधरी हशमत अली खान को साथ देकर एक लम्हे को चौंक सा गया और फिर जबरन चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर उसने सिर्फ चौधरी हशमत अली खान और उनके बेटे खावर से हाथ मिलाया था और मुझे यकसर नजरअंदाज कर डाला था। मेरा ख्याल था कि चौधरी हशमत अली खान सबसे पहले चौधरी बरादरान के खिलाफ पर्चा कटवाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने हवालदार करीम दाद को घूरते हुए पूछा, हवालदार, रानी का अब तक क्या बना, बरामद हुई या नहीं? उनकी अचानक इस्तफार पर हवालदार करीम दाद बुखला सा गया और फिर बोला, जी हम कोशिश कर रहे हैं। क्या मट्टी कोशिश कर रहे हो तुम? चौधरी दुष्ट लहजे में बोला और खुद से मुखातब होकर बोला, वो काका, तुझे किन पर शुबा है? मैं जानता था कि उन्होंने दानिस्ता ये सवाल हवालदार करीम दाद के सामने मुझसे पूछा था। चुनाचा मैंने भी बिला तवीको तामल कहा कि जी चौधरी जी, शुबा नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि ये हरकत चौधरी नियाज और परवेज के सिवा किसी और की नहीं हो सकती। मेरे जवाब पर हवालदार करीम दाद ने दांत भींच कर मुझे घूरा और फिर करख्त लहजे में बोले, ओए तुझे कैसे यकीन है कि यह हरकत उनकी हो सकती है? तुझे क्या ख्वाब इल्हाम हुआ था? हवालदार, ये बात तो आप भी जानते होंगे कि रानी को उठाने वाले कौन लोग हो सकते हैं, और ये वही लोग हैं जिनके कहने पर आपने मुझ पर अपना 100 नामी जुलाद के हाथों तशद्दुद भी करवाया था, ताकि मैं अपनी मर्जी के बयान पर अपने दस्तखत कर डालूं। मैंने भी उसे आड़े हाथों लिया और वो बुखला सा गया।
ये काका क्या कह रहा है हवालदार? चौधरी हशमत अली खान ने उसे घूर कर पूछा। ये बकवास करता है चौधरी साहब, हवालदार करीम दाद मुझे खा जानवी नजरों से घूरते हुए चौधरी हशमत खान से बोला। हकीकत में मैं आपको बताता हूँ जी, बात दरअसल ये है कि ये शौका बड़ा ही कमीना आदमी है। उसने आपके और चौधरी नियाज वगैरह के बीच झगड़ा करवाने का सोच रखा है। जब शुरू में हमने इसे चौधरी आलम खान के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया था तो इस मरदूद ने यही बयान दिया था कि उसने चौधरी आलम खान का कत्ल आपके कहने पर किया है। मैं हवालदार करीम दाद के इस सफेद झूठ पर खोल उठा। ये झूठ है चौधरी साहब, मैं इख्तिजाजन चिल्लाकर बोला। बल्कि हकीकत यही है कि मैं इससे पहले आपको जानता भी ना था, मगर हवालदार ने ही चौधरी नियाज और चौधरी परवेज के दबाव में मुझ पे धमकी देते हुए कहा था कि मैं उनकी मर्जी के मुताबिक यही बयान दूं कि मैंने आप ही के कहने पर कत्ल किया है, वरना मुझे फांसी हो जाएगी। चौधरी हशमत अली खान करीम दाद और चौधरी बरादरान के खुफिया दौरान गठजोड़ से अच्छी तरह वाकिफ था, लिहाजा वो इसकी बात सिर्फ नजर करते हुए उससे बारब लहजे में बोला। देखो हवालदार जी, सबसे पहले अब तुम चौधरी आलम खान के इन दोनों बेटों के खिलाफ रानी के अगवा का पर्चा काटोगे। फिर जब मैं भी उनके खिलाफ पर्चा कटवाऊंगा तो चौधरी हशमत अली खान की बात पर हवालदार करीम दाद एकदम चौंक कर उनसे मुस्तफर हुआ। आपने भी पर्चा कटवाना है? आपके साथ क्या हुआ? उसकी इस्तफसार पर बिल आकर चौधरी हशमत अली खान ने उसे चौधरी बरादरान और उनके आदमियों के हम पर कातलाना हमले की रुदायत बयान कर डाली, जिसे सुनकर हवालदार करीम दाद भौंचका रह गया और उसके चेहरे से अब दीदनी हद तक परेशानी मुतरश्शि होने लगी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मुझे खुद भी अलबत्ता इस बात पर ताज्जुब था कि अभी तक चौधरी बरादरान ने भी हवालदार करीम दाद को ऐसी किसी बात से आगाह नहीं किया था। इधर चौधरी हशमत अली खान हवालदार करीम दाद को मतजब्जब पा कर बोले, अच्छा चल, रानी के अगवा पर इन दोनों भाइयों के खिलाफ तो पर्चा काट ले, इन दोनों से मेरे आदमी खुद ही निमट लेंगे। तूवन और कराहन हवालदार करीम दाद ने चौधरी हशमत अली खान से कहा, देखिए चौधरी साहब, बात दरअसल ये है कि मैं खुद भी मजबूर हूँ। अभी मैं चौधरी आलम खान के कातिल को गिरफ्तार नहीं कर सका हूँ, फिर उल्टा मकतूल के बेटों के भी महज रानी के अगवा के शुबे में गिरफ्तारी के अहकामात जारी कर दूं। इस तरह तो मेरे लिए भी मुश्किल पड़ जाएगी। आप समझदार आदमी हैं, जरूर मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करेंगे। हूँ तो ये बात है। चौधरी हशमत खान गहरी हमकारी बरते हुए बोला, अच्छा तो ठीक है, फिर ये मामला भी हम खुद ही देख लेंगे, मगर फिर तुम बीच में मत आना हमारे, समझ गया ना तू? ये क्या कर वो पलटे और हम भी बाहर आ गए। फिर मैंने उनसे इजाजत चाही तो वो हैरत से मेरी तरफ देखकर बोले, वही काके शोके, तू पागल तो नहीं हो गया? वो दोनों तेरी खून के प्यासे हो रहे हैं, तेरी जान को भी खतरा है, तू किधर जाएगा? चल हमारे साथ, आज से तू हमारे साथ रहेगा। चौधरी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। वो बात यह है कि मेरा ताया अकबर खान बहुत परेशान हो जाएगा। वो बेचारा अपनी बेटी रानी की गुमशुदगी से बिल्कुल टूट चुका है। ऐसे में उसे मेरे सहारे की जरूरत है। आप मेरी फिक्र ना करें, मेरा अल्लाह मेरे नाल है। वही काके, तू तो वाकई बहुत बड़ा जीदार मुंडा है। वो फखर से मेरा कांधा थपथपा कर बोले, अच्छा फिर जैसे तेरी मर्जी, मगर हमसे मिलते जुलते रहना, रानी का भी कुछ सोच लेंगे। ये क्या कर वो चले गए और मैं वापस अपने घर की तरफ लौट गया, मगर फिर सोनी का ख्याल आते ही मैं सीधा मुरादे के घर की तरफ हो लिया। शाम होने वाली थी। दूर आफ्तादा देहातों में वैसे ही सरे शाम ही रात का गुमान होने लगता था। इस वक्त भी मैं शाम गोया रात की दहशतनाक तारीकी में बदलने लगी। मेरा ज़हन चौधरी बरादरान के इस नए और खौफनाक तनादे में उलझा हुआ था। वो अब पहले से भी ज्यादा मेरी जान के दुश्मन बन चुके थे। रानी के पुर इसरार गयाब की अलग मुझे फिक्र सता रही थी। मैं नीम उजाला नुमा तारीकी में बड़ा चला जा रहा था कि अचानक मैं ठठक कर रुका। मेरे ऐन सामने चंद कदमों के फासले पर एक रीछ नुमा दरिंदा खड़ा था और ये जिगदोश था, यारे इबलीस जिगदोश, जो मुझे अपनी अकलौती आंखें से घूरे जा रहा था और मेरा दिल तेजी से धड़धड़ाने लगा। मैं अब उसकी वहशत में आने वाला कब था? अलबत्ता उसे यहाँ देखकर मुझे तशवीश जरूर होने लगी। वो चंद कदम मेरी तरफ बढ़ा और मैं मोहतात होकर खड़ा हो गया। मेरी रगों में खून सनसाने लगा और मैंने अपनी नजरें एक यक चश्म चेहरे पर मजबूर कर रखी थी। मूर्ख, अब भी समय है, मेरे रास्ते से हट जा, वरना मैं तुझे रसा करके रख दूंगा। वो घुराकर बड़े कीना तोड़ लहजे में मुझसे बोला, मैं अब तुम्हारी इस पुरानी और बेकार की गीदड़ भभकियों में आने वाला नहीं हूँ शैतान। मैंने नडर होकर मुस्तकिम लहजे में उसे ललकारते हुए कहा, अनकरीब तो मेरे हाथों जहन्नम वासल होने वाला है। वो तागूती कहका लगाते हुए बोला,
तेरा ये ख्वाब कभी पूरा ना होगा। मैं अब तुझसे दूसरी किस्म की लड़ाई लड़ूंगा कि तेरे अपने लोग तेरा जीना दूभर कर देंगे, क्योंकि मैंने एक ऐसे इंसान की रूह को काबू में कर लिया है जो तेरे खून की प्यासी हो रही है, और मैं उस कबीर शैतान की बात पर परेशान सा हो गया। रानी को तो भूल गया, दूसरे ही लम्हे उसने पुर इसरार लहजे में कहा, और मैं चौंक पड़ा। मेरा दिल रानी के जिक्र पर यकबारगी धड़का था। कहीं उसने रानी को तो अगवा नहीं किया था, मगर रानी को तो अगवा हुए महीने से ऊपर का अरसा बीत चुका था, जबकि जगदोश तो अभी यहाँ ज़ाहिर हुआ था, और वो भी मेरा साथ ही। मैंने सोचा कि डाल दिया ना मैंने तुझे चिंता में, वो मकाराना मुस्कुराहट से बोला, और मेरी उलझी हुई पुरसोच खामोश उसको नज़ीर ने मेरे तफक्कर पर महमूल किया था। और मैंने जरा मसरत अंदेशी से काम लेते हुए पूछा, रानी को तो गायब हुए 1-1.5 महीना हो चुका है, और तुम? हाँ, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है और किन लोगों के कब्जे में है, वो बोला, और बात जारी रखते हुए मजीद बोला, और अब मैं चाहूंगा कि उसे बरामद करके एक बार फिर अपनी शतोंगड़ी बना सकता हूँ। वो किन लोगों के कब्जे में है? मैंने किसी ख्याल के तहत पूछा। वो चौधरी नियाज और चौधरी परवेज के रोजाना इंसानियत सोच तशद्दुद को सह रही है, और अब मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। उसे उन दोनों भाइयों की हवसनाक चुंगल से छुड़ाऊंगा और फिर उसे अपने ताबे बना लूंगा। जगदोश ने फातहाना अंदाज में कहा, और मेरा दिल बेतहाशा धड़कने लगा। अब मेरा शक यकीन में कामल में बदल चुका था कि बेचारी रानी उन्हीं दोनों चौधरी भाइयों के कब्जे में है, और वो रोजाना उसकी बर्बरियत और हवस का निशाना बनती थी। ये सुनकर मेरा दिलो दिमाग तैशनाक आंधियों की जिद में आ गया। ताहम मैंने अपनी जलती सुलगती कैफियत पर काबू पाते हुए जगदोश से पूछा, रानी को उन दोनों खबीस भाइयों ने किधर कैद कर रखा है? धीरज बालक धीरज, तू उनका मुकाबला नहीं कर सकता। देख, अगर तू मुझसे एक सौदा कर ले तो रानी को जिंदा सलामत मैं तेरे सामने पेश कर दूंगा, और वो दोनों चौधरी भाइयों को भी ऐसा मजा चखाऊंगा कि सारी जिंदगी वो तुझसे पनाह मांगते फिरेंगे। क्या सौदा, बता मुझे। मैंने उसे घूर कर पूछा। तू मेरे और सोहनी के रास्ते से हट जा, उसने कहा, और मैं गैज आलूद लहजे में बोला, हरगिज नहीं। अगर तूने सोहनी की तरफ दोबारा आंख उठाकर देखा तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, वो मेरी बात पर एक बेहंगम कहका लगाते हुए बोला, बाल के, तू मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकता। तू मेरा रास्ता तो खोटा कर सकता है, मगर मुझे फना के घाट नहीं उतार सकता। मैं उसकी खुशफहमी दूर करते हुए जहरीली मुस्कुराहट से बोला, ऐ खबीस शैतान, तू चेला राम का हशर भूल गया जिसे हमने जलाकर खाक तक काट डाला था। मैं अच्छी तरह तेरी मौत का भी राज जान गया हूँ। आग, जलती सुलगती आग, यही तुझे हलाक कर सकती है। मेरी बात पर जगदोश की सारी अकड़ फूट जाती रही। उसके चेहरे के बदलते हुए तासरात से अब मुझे भी उस बात का पूरा यकीन होने लगा था कि यह खबीस शैतान भी आग ही के जरिए नेस्तो नाबूद हो सकता था, क्योंकि जब ठाकुर दयाल सिंह ने मेरे जरिए चेला राम के दास गोवर्धन को पकड़ा था तो गोवर्धन ने अपने गुरु घंटाल चेला राम के बारे में ये रात बताया था कि सवाए आग के उस शैतान सहार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लिहाजा फिर बाद में मुझे भी अदराक हुआ कि चेला राम की तरह जगदोश भी सिर्फ एक ही तरीके से हलाक हो सकता था, और ये तरीका आग था। किसी तरह अगर मैं जगदोश को भी चेला राम की तरह आग में झोंक देता तो यकीनन उसका खबीस भी चेला राम की तरह ही हशर हो सकता था, मगर मुझे ऐसे मौके की तलाश थी। तू मेरे लिए अब बहुत खतरनाक होता जा रहा है बालके, जगदोश ने अपनी पेशानी पर लगी अकलौती खौफनाक आंख से घूरते हुए कहा, और तेरा बंदोबस्त भी अब मुझे तुरंत करना ही पड़ेगा। ये क्या कर वो गायब हो गया, और पहली बार मुझे मसरत का एहसास हुआ। जगदोश का इस खौफजदा सी धमकी ने मेरे इस यकीन को मजीद पुख्ता कर दिया कि वो आग से डरता था, और आग भी ऐसे खबीस साहर को हलाक कर सकती है। मैं अब जरा मुतमिन सा होने लगा, मगर रानी वाली बात ने मुझे उदास कर डाला। वो बेचारी अपनी नादानी के बाद इन दोनों चौधरी बरादरान के हाथों मुसलसल खिलौना बनी हुई थी। मैंने फौरन ये सोचकर दिल में तहैया किया कि उससे पहले जगदोश उसे खिलौना बनाकर मेरे खिलाफ अपने ताबे बना डाले, मुझे फौरन रानी को चौधरी बरादरान के हवसनाक चुंगल से छुड़ा लेना चाहिए था। ताहम इससे पहले मैं अपनी जान जाना सोहनी से मिलने का कसद किया। मैं उसे जगदोश से बाखबर करना चाहता था कि वो खबीस यहाँ भी आ चुका था। मैं उसके घर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। दोनों बाप बेटी जाग रहे थे। मैंने जगदोश से खबरदार करते हुए ताकीद की कि वह घर से बाहर ना निकले, और ना ही उसका बाप मुरादा उसे घर पर अकेला छोड़े। मैंने उन्हें ये भी खास हदायत की कि जगदोश आग से डरता है, लिहाजा उसे दूर रखने के लिए घर में हर वक्त कोयलों की अंगीठी या आग की 2-3 मशीनों को जलते रहना अशद जरूरी था। उसका बाप बेचारा फौरन परेशान हो गया। अपनी बेटी को दोबारा जिंदा हालत में देखकर उसे जो राहत मिली थी वो काफूर होने लगी।
میری تاکید کے مطابق اس نے ابھی تک گاؤں میں یہ بات مشہور نہیں کی تھی کہ سوہنی دوبارہ گھر میں آ چکی ہے، ورنہ گاؤں کے لوگ سوہنی کو زندہ دیکھ کر پھر مشتعل ہو جاتے اور اسے بھی شیطانی روح سمجھتے، کیونکہ انہوں نے اپنے سامنے سوہنی کو مردہ حالت میں دفن ہوتے دیکھا تھا۔ میں پہلے ہی گاؤں والوں کی مخالفت بھگت رہا تھا، اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ دونوں غریب باپ بیٹی بھی گاؤں والوں کا عتاب سہتے۔ پتر شوکت، آخر سمودی جگدوش سے کب جان چھوٹے گی ہماری؟ مجھے تو پھر ڈر لگنے لگا ہے کہ کہیں میری سوہنی دوبہی پھر مجھ سے نہ بچھڑ جائے۔ سوہنی کا باپ مرادہ پریشان ہو کر مجھ سے بولا اور میں اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، چاچا تو فکر نہ کر، بہت جلد میں اس مودی شیطان جگدوش کا خاتمہ کروں گا، بس تم دونوں ہمت نہ ہارنا اور اپنا دل مضبوط کیے رکھنا۔ میں انہیں تسلی دے کر واپس اپنے گھر چلا آیا۔ جگدوش نے گاؤں میں نادل ہوتے ہی میرے خلاف محاذ بنا لیا تھا۔ اس نے میرے حالات پر گہری نگاہ رکھی ہوئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ میں اس وقت گاؤں میں دوہرے تہرے حالات کا شکار ہوں، اور وہ یوں تو اپنے کالے اور پر اسرار علوم سے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، مگر دوسرے عام طریقے سے میرے خلاف سازش تیار کر سکتا تھا، اور مجھے سب سے زیادہ اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں یہ خبیث مکاری سے کام لیتے ہوئے گاؤں والوں اور ان دونوں چودھری بدران کو میرے خلاف مزید بھڑکا کر میرے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا تھا۔ اور پھر وہی ہوا۔ جگدوش عام آدمی کے بھیس میں گاؤں کے لوگوں سے رل مل گیا اور پھر اس افواہ کو مزید ہوا دی کہ میں نے اور مرادے نے سوہنی کی لاش پر کالا جادو کر کے اسے دوبارہ زندہ کر دیا، اور اب ان قریب میں اور مرادہ پورے قبرستان کے مردوں کو زندہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لوگوں نے یہ سنا تو ایک بار پھر اشتعال کی آندھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اپنے پرکھوں کی لاشوں کی بے حرمتی ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ بس پھر کیا تھا، سب سے پہلے گاؤں والے ایک بڑے ہجوم کی صورت میں مرادے کے گھر جا گھسے۔ انہوں نے جو سوہنی کو وہاں پایا تو جگدوش کی بات کی تصدیق ہو گئی۔ مرادہ گھبرا گیا، گاؤں والوں کو کیا جواب دیتا؟ مشتعل ہجوم نے سوہنی کو زندہ حالت میں دیکھا تو مارو مارو کا شور بلند ہو گیا۔ مرادے کا ڈنڈا مار مار کر کچومر نکال دیا گیا۔ سوہنی بری طرح دہشت زدہ ہو کر گھر سے بھاگ نکلی، اور یہی جگدوش چاہتا تھا۔ مجھے جیسے اس اندوہناک واقعے کی خبر ہوئی اور میں سمجھ گیا کہ اس کمینے جگدوش کی حرکت ہو سکتی ہے، مجھے گاؤں والوں کی کم عقل اور مرادے کی موت کا حد افسوس ہوا۔ میں جانتا تھا کہ اب میرے لیے اس گاؤں میں جگہ نہیں رہی، لہذا اس سے پہلے کہ گاؤں والا کا وہ مشتعل ہجوم ادھر تایا جان کے گھر کا رخ کرتا، میں منہ چھپائے ان کے پہنچنے سے پہلے ہی نکل کھڑا ہوا۔ شکر تھا کہ سوہنی بھاگ کر زیادہ دور نہیں گئی تھی۔ اس نے عقل مندی کی کہ وہ سیدھی دوڑتی ہوئی میرے گھر کی طرف آ رہی تھی، اور میں نے سکون کا سانس لیا۔ پھر سوہنی کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف بڑھ گیا۔ نامراد جگدوش کی وجہ سے ایک بار پھر میں اور سوہنی راندہ درگاہ ہو گئے تھے۔ البتہ مجھے یہ تسلی ضرور تھی کہ سوہنی جب تک میرے ساتھ تھی جگدوش اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ اچانک مجھے ایسے کڑے وقت میں چودھری حشمت علی خان کا خیال آیا اور میں نے ان کے گاؤں کا رخ کیا۔ میں اور سوہنی چھپتے چھپاتے اپنے گاؤں کی حدود سے دور نکل آئے۔ اچانک فضا میں گولیوں کی ترتراہٹ ابھری اور میں بری طرح ٹھٹک گیا۔ سوہنی دہشت سے چیخ مار کر مجھ سے لپٹ گئی۔ اسی وقت ایک رخت آواز ہماری ٹھٹکی ہوئی سماعتوں سے ٹکرائی، خبردار اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا، ورنہ دونوں کو گولیوں سے بھون کر رکھ دیا جائے گا۔ میں نے چونک کر آواز کی سمت دیکھا تو میرا دل اچھل کر حلقوں میں آن پڑا۔ سامنے ہی چند قدموں کے فاصلے پر میں نے چودھری برادران اور ان کے رافل بدست حواریوں کو دیکھا۔ ان سب نے اپنی گنوں کا رخ ہم دونوں کی طرف کر رکھا تھا، اور میرا دل جیسے سائیں سائیں کرتی کنپنیوں پر دھڑکنے لگا۔ لے چلو ان دونوں کو اٹھا کر، چودھری نیاز کی درست آواز ابھری، اور پھر ان کے کرندے ہمیں پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے چلے۔ ذرا اس دوران کی جیپ کھڑی تھی، سوہنی کو بے دردی سے دھکیل کر اس میں سوار کر دیا گیا۔ اپنی فکر نہیں تھی، فکر تو سوہنی کی تھی، کیونکہ یہ دونوں چودھری برادران مجھ پر بری طرح ادھار کھائے بیٹھے تھے۔ بہرطور وہ مجھے لے کر اپنی حویلی میں پہنچے اور ہم دونوں کو ایک زمین دوز قید خانے میں لے آئے۔ یہاں پرالی کے علاوہ جانے کیا کیا لا ابلا بکھرا ہوا تھا، ہمیں یہاں قید کر کے چلے گئے۔ یہاں صرف ایک لال ٹین روشن تھی۔ اچانک میری نظر سامنے دیوار کے ایک کونے پر پڑی اور میں چونک گیا۔ وہاں کوئی مجھے بیٹھا ہوا نظر آیا۔ وہ کوئی جوان عورت تھی جس کے کھچڑی کے بال چہرے پر پھیلے ہوئے تھے۔ شوکت، یہ کون ہے؟ میں نے طے کھنا کے سیل زدہ دم بخود ماحول میں سوہنی کی لرزہ آواز ابھری، اور میں نے اسے اپنے آپ سے لگاتے ہوئے تسلی دی، اور پھر سے اسے علیحدہ ہو کر اس علم نصیب عورت کی طرف بڑھا۔ وہ دیوانے زندہ سے پشت ٹکائے اپنی کھچڑی سے بالوں بھرا چہرہ گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔ پھر جیسے آہٹ پاتے ہی اس نے اپنا سر اٹھایا تو تب تک میں بھی اس کے ذرا قریب پہنچ گیا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر مجھے پہچانتے ہی ایک زوردار ہذیانی چیخ ماری، شوکت، اور میں بھی اسے دیکھ کر بے مشکل ہی پہچان پایا۔ وہ رانی تھی۔
उजड़ी पुजड़ी रानी, किसी खंडर की तरह उसके वीरान चेहरे से आसीबी परछाइयां मतरशे थी। रानी को तो यहाँ मेरे ला मुतहरक हुए। वो यकदम लड़ते कदमों से उठ खड़ी हुई और हिस्ट्रियाई जनूनी के साथ गोया मुझसे शिकवा करते हुए बोली, देख शौके, तूने मेरी किस हाल तक पहुंचा दिया। अब तो तेरे कलेजे को ठंडक मिल गई होगी ना। ये तू क्या कह रही है रानी? मैं तो खुद तुझे तलाश करता फिर रहा हूँ, मैंने बड़े रसान के साथ कहा। और फिर मुझे उसकी काबिल रहम हज़ीयत गुज़ाई पर बड़ा तरस आया और वो शिकस्ता लहजे में बोली, उन खबीस चौधरी ने मुझे रोजाना अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया और अब तो उनके कारिंदे ने मुझे, और वो इतना बताकर रोहानसी हो गई। मारे दिक्कत के वो अपना जुमरा भी पूरा ना कर सकी और बेइख्तियार अपने दोनों हाथों से चेहरा ढांप कर फूट फूट कर रो दी और मैं धीरे से उसके करीब गया। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था और दोनों चौधरी बरादरान की दरिंदगी पर मेरा खून रगों में मिसले लावा खोलने लगा और मैंने धीरे से रानी को छुआ और मुलायमत अमीजी से बोला, रानी, तेरे साथ जो कुछ हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है। तू फिक्र ना कर, अल्लाह हमें इस मुश्किल से जरूर निकालेगा। शौके, अल्लाह के वास्ते मुझे इस जहन्नम से निकाल दे। बहुत ज़ल्म होता है मुझ पर यहाँ। उसके लहजे की यासियत और दर्द अंगेज फरियाद पर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा और मैंने फिर उसे तसल्ली देते हुए कहा, रानी, तू जरा हौसला कर, मैं इंशाअल्लाह तुझे जरूर यहाँ से निकाल ले जाऊंगा। उसने एक चौंकती हुई निगाह मेरे चेहरे पर डाली और फिर जरा परेरे खड़ी सोहनी को देखकर मुझसे बोली, ये कौन है? मैं जरा खामोशी के बाद बोला, ये सोहनी है। क्या जगदोश मर गया? वो अजीब चौंकते हुए लहजे में बोली। उसे मालूम था कि सोहनी कौन थी और किसके कब्जे में थी, ताहम मैंने उसके चेहरे से यकदम बदलते हुए तासरात से अंदाजा लगाया कि वो सोहनी को मेरे साथ देखकर जरा भी खुश नहीं हुई, क्योंकि वो जानती थी कि मैं दरअसल सोहनी से ही असल मोहब्बत करता था और नींद मैंने सोहनी को जगदोश की कैद से छुड़वाने का किस कदर मुस्लिम अज़म कर रखा था और यही सबब था कि सोहनी को जिंदा सलामत मेरे साथ देखकर वो हसद में मुब्तला होने लगी। नहीं, अभी वो खबीस शैतान जगदोश जिंदा है। मैंने होले से जवाबन कहा तो वो यकदम हिस्ट्रियाई अंदाज में डागन की तरह फूंकारती हुई सोहनी की तरफ लपकी और मैं जब तक उसे संभालता वो सोहनी को दबोच चुकी थी। रुका मैं भी नहीं था। तूने मेरा शौका छीन लिया, तेरी वजह से मैं आज दर बदर हुई, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो हज़ियानी अंदाज में चीखती हुई सोहनी को नोचने घसूटने लगी। सोहनी बेचारी हैरान और परेशान अपना दफा करने लगी। इतने में मैं भी उसके करीब जा पहुंचा और रानी को बाजू से पकड़कर एक झटके से अलग किया और गुस्से से बोला, रानी, ये क्या हरकत है? क्या तू पागल हो गई है? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, वो जुनूनाना अंदाज में बोली। याद रख शौके, मैं आज तुम दोनों की वजह से बेइज्जत हुई हूँ, मैं तुम दोनों को भी चैन से नहीं रहने दूंगी। और फिर वो हिस्ट्रियाई अंदाज में चिल्लाने लगी, जगदोश, अजीम जगदोश, आ मेरी मदद कर। वो जगदोश को पुकारने लगी तो मैंने उस पर लानत भेजी। अचानक दीवार पर एक भयानक साया सा उभरा और वो रीशनुमा एक हिलोला उछल कर तहखाने में आ गया। ये जगदोश था, जिसे देखकर सोहनी के हलक से बेइख्तियार खौफज़दा सी चीख निकल गई और वो मेरे साथ चिमट गई। जगदोश को देखकर रानी के मजनूनाना चेहरे पर खुशी के आसार उमड़ आए। जगदोश, तूने मुझे पुरअसरार ताकतों से नवाजने का वादा किया था ताकि मैं अपने महबूब दुश्मन से इंतकाम लूं, और अब वो वक्त आ गया है। मुझे उसने कहीं का नहीं छोड़ा, अपना वादा पूरा कर जगदोश। जगदोश ने उसकी तरफ एक लंबे फल वाला छुरा फेंका और उससे बोला, तू चिंता न कर मेरी दासी, मुझे अपना वचन याद है। उठा ये छुरा और अपनी गर्दन पर फेर ले और फिर मैं तुझे प्यासी आत्मा की सूरत में शक्ति दूंगा। जगदोश के हुक्म की देर थी कि रानी ने फौरन उसके हुक्म की तामील की और छुरा उठा लिया। मैं अपनी जगह हक्का बक्का सा खड़ा रह गया और फिर मेरे देखते ही देखते रानी ने जगदोश का फेंका हुआ छुरा उठाकर अपनी गर्दन पर फेर लिया। सोहनी के हलक से मारे दहशत की चीख बुलंद हो गई और इधर मैं भी अपनी जगह सुन होकर रह गया। रानी के हलक से खरखराती हुई आवाज उभरी, बस उसकी गर्दन से बल बल खून बहने लगा। छुरा उसके हाथ से छूटकर गिर गया था और फिर वो खुद भी जमीन पर गिरकर माहिब आप की तरह तड़पने लगी और फिर मैंने देखा कि जगदोश उस पर ज़हर लब कोई मंत्र पढ़कर फूंकने लगा। तब फिर आनन फानन रानी का जख्मी और खून आलूदा वजूद गायब हो गया और उसके साथ ही जगदोश का खौफनाक भारी बरका वजूद भी नजरों से उज्जल हो गया। तहखाने के महदूद माहौल में यकबारगी असाब शिकन सन्नाटा छा गया। सोहनी हनूज मेरे साथ चिपकी खड़ी खजान रसीदे पत्ते की तरह कांप रही थी और मैंने उसे हौसला दिया और खुद गुमसुम सा खड़ा था। जरा देर गुजरी तो मैंने सामने एक छवि उभरते देखी और मैं चौंक गया। वो रानी की छवि थी जो अब रफ्ता रफ्ता उसके पूरे वजूद में ढलने लगी। जरा ही देर बाद रानी मुजस्सम मेरे सामने खड़ी थी। अब उसके चेहरे से तकलीफ आराम और अलम नसीबी की बजाय गहरी तमानियत भरी परछाइयां हलकोले रेड़ रही थीं। उसकी आंखों में इंतकाम और जुनून खेदी की आग रोशन थी
जिससे उसका वजूद बदला बदला सा महसूस होने लगा। अचानक दरवाजे पर आहट उभरी और हम चौंक गए। तहखाने के दरवाजे से वो दोनों चौधरी बरादरान अंदर दाखिल हुए और उनके हमरा 4 लहीम लहीम मसला करिंदे भी थे। रानी उनको देखकर सुलग उठी और घुर्राहट अमीर चीख के साथ चौधरी नियाज और चौधरी परवेज पर झपटी। उसी लम्हे उनके चारों करिंदों ने रानी को दबोच लिया। रानी को तो पहले ही उन पर उधार खाए बैठी थी और फिर मेरी आंखों ने एक हैरतनाक मंजर देखा। रानी ने एक करिंदे की गर्दन पर दांत गाड़ दिए। वो हल्के बल लर्जा खेत अंदाज में चीखा। बाकी तीनों ने राफलें रानी पर बंदूकें तान ली। रानी ने शोला बरसाती नजरों से उन्हें घूरा और बारी बारी अपने दोनों हाथों से उनकी गर्दनें दबोच ली। उन्होंने बंदूक की लबलबी दबा दी। तहखाने के महदूद माहौल में कार फाड़ देने के धमाके उभरे और बारूद की बू फैल गई, मगर रानी अपनी जगह सही सलामत खड़ी थी। वो लोग उसे जिंदा देखकर भौंचके से रह गए। रानी ने दोनों कारिंदों की गर्दनें दबोचकर उन्हें बेपनाह कुव्वत के साथ तहखाने की दीवार से दे मारा। उनकी हलक से भयानक चीख उभरी। चौथे का भी रानी ने यही असर किया। उधर दोनों चौधरी बरादरान समझ बैठे कि रानी पर जिन चढ़ चुका है और वो दोनों भागे। तो रानी ने एक को रास्ते में ही छाप लिया। वो चौधरी नियाज था। रानी अपने खून आलूद बाछे फैलाए मकरू और मुंतकिम हंसी के साथ उनसे बोली, क्यों चौधरी, तूने तो मेरी इज्जत खराब की है, अब तो इसका हिसाब भी दे। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। चौधरी नियाज दहशत से कपकपा कर बोला, हाँ तुझे माफ कर दूंगी, मगर तेरा खून पीने के बाद। रानी ने अंगारा बरसाती आंखों से उसे घूर कर देखा और फिर उसकी खून टपकाती बाछों से खौफनाक नोकीले दांत झांकने लगे और फिर वही दांत उसने चौधरी नियाज की गर्दन पर गाड़ दिए और उसकी हलक से भयानक चीख खारिज हो गई और वह नीचे गिर गया। रानी झुककर उसका खून चूसने लगी। सोहनी और मैं दम खुद खड़े ये लर्जा खेज मंजर देख रहे थे। उस बदबख्त मर्दूद जगदोश ने रानी को अपनी शैतानी ताकतों से खून आशाम डायन बना डाला था। मुझे खुद भी अब रानी से शदीद खतरा महसूस होने लगा। मैंने सोहनी का हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ दौड़ा। मेरी अकब से रानी की खौफनाक चीख उभरी थी, मगर मैंने जल्दी से बाहर निकलकर तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया और पूरी हवेली में भगदड़ मच गई। चौधरी परवेज के करिंदों ने हमें फिर दबोच लिया। चौधरी परवेज भी वहीं खड़ा रोए जा रहा था। उसे शायद अपने बड़े भाई चौधरी नियाज के भयानक अंजाम के बारे में लर्जा खेद अंदाजा हो चुका था और मैंने चौधरी परवेज से कहा, चौधरी जी, मैंने तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया है, इसे अब मत खोलना। रानी एक खून अशाम डायन बन चुकी है, वरना वो हम सब को मार डालेगी। ओए, ये रानी एकदम डायन कैसे बन गई? चौधरी परवेज ने खुद पर काबू पाते हुए पूछा तो जैसे मुझे अपनी सफाई पेश करने का मौका मिल गया हो और मैं जल्दी से बोला, चौधरी जी, आप तो मेरी बात का यकीन ही कब करते हैं जो मैं आपकी सारी बात बताता। अब भी वक्त है चौधरी जी, मेरी बात पर भरोसा करें, वरना हम सब इस शैतान जगदोश की कारस्तानियों की भीड़ चढ़ जाएंगे। मेरी बात पर पहली बार अक्कड़ मजाज चौधरी परवेज के चेहरे पर पुरसोच तासरात उभरे और वो मेरी तरफ देखकर बोला, तो फिर मुझे बता, ये सारा क्या चक्कर है? ये जगदोश शैतान कौन है? और जवाबन मैंने सराहत बतानी शुरू की। चौधरी जी, ये जगदोश एक बहुत बड़ा शैतानी सहर है और मैंने उसे नाबूद कर डालने की कसम खा रखी है, क्योंकि उसकी वजह से मैं अब तक मुसीबतों का शिकार रहा हूँ। उसने सबसे पहले रानी के जरिए आपके वालिद वड्डे चौधरी आलम खान का कत्ल करवाया और फिर अब आपके वड्डे भरा चौधरी नियाज खान को भी बेदर्दी से खत्म करवा डाला और रानी अपनी बेवकूफी की वजह से उसकी दासी बन चुकी थी और अब तो उसने जगदोश के कहने पर खुद ही अपनी जान का खात्मा भी कर डाला था, क्योंकि जगदोश ने मेरे सामने उसे हुक्म दिया कि वो अगर अपने हाथों से अपनी जान का खात्मा कर डाले तो वो उसकी रूह को काबू कर लेगा और उसे पूर्ण इसरार तागूती ताकतों से माला माल करेगा। दर हकीकत रानी मुझसे शादी करना चाहती थी, मगर मैं तो सोहनी से प्यार करता था जिसे मरदूद मलऊन जगदोश ने अपनी कैद में कर रखा था, ताकि एक खास वक्त पर उस पर काला मंत्र करके खुद को नाकाबिल तस्खीर कुव्वतों का मालिक बना डाले। मगर मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर अल्लाह के हुक्म की ताकत से उसका शैतानी मंसूबा अधूरा कर डाला है। अब वो रानी पर अपना काला इल्म करके उसे मेरे पीछे लगा चुका है, मगर अब वो आपके लिए भी खतरनाक बन चुकी है और आपसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना भी चाहती है। इसलिए उसने आपके करिंदों और चौधरी नियाज का बेदर्दी से खून कर डाला। उसकी वजह से आपको और मेरे गाँव वालों की ये गलतफहमी हो गई है कि मैं खुद एक काले मंत्रों का पुजारी हूँ और आप सब लोग हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए। और यही वे मरदूद जगदोश चाहता है, ताकि वो आप लोगों के दिल में मेरे खिलाफ गलतफहमी भरकर मुझे अपने रास्ते से हटा सके, जबकि ये बात सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि जगदोश को किस तरह हलाक हो सकता है। ये सब बताते हुए मैंने चौधरी परवेज को सरहद पार की रियासत ठाकर
रियासत के ठाकर दयाल सिंह और चेलाराम के बारे में भी बताया। और मेरी बातें सुनकर चौधरी परवेज के चेहरे से हवाइयां उड़ने लगी और मैं दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि शायद अब उसे अकल आ जाए। वो चंद सानी परेशानी और खामोशी के बाद झल्लाकर बोला, अब मुझे ये बता, इस डाइन से किस तरह पीछा छुड़ाया जाए? चौधरी साहब, वो अब मेरे अलावा सोहनी और आपकी भी जान की दुश्मन बन चुकी है और उसे हलाक करने का यही तरीका है कि किसी तरह तय खाने में आग लगा दी जाए, क्योंकि ये शैतानी लोग आग के सामने बेबस हो जाते हैं। तय खाने में आग लगा दें, ये कैसे हो सकता है? इस तरह हमारी पूरी हवेली जलकर खाकस्तर हो जाएगी। चौधरी परवेज परेशान कुन तशवीश से बोला। तो मैंने कहा, चौधरी साहब, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं, हमें ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, वरना एक बार अगर वो खून अशाम डाइन तय खाने से आजाद हो गई तो फिर वो हमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। और मैंने आखिर में उसे डराते हुए कहा, वो तो जरा देर की तफकीर अमीर खामोशी के बाद हतमी लहजे में नफी में अपना सर हिलाते हुए बोला, हरगिज नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसका तरीका यही है कि उस हरामजादी डाइन को तय खाने के अंदर ही कैद में रखा जाए, खुद ही वो मर जाएगी। तू एक बात बता। वो आखिर में बोला तो मैंने फौरन कहा, जी बोले। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तू किसी तरह इस बड़े शैतान जगदोश को फना कर डाल? इस तरह उसकी चेली ये डायन भी यूं तो आप अपने आप मर जाएगी। हाँ, इस तरह ये मुमकिन तो हो सकता है, मगर चौधरी साहब, उस शैतान को जगदोश को हलाक करने में मुझे जाने अभी कितना वक्त और लगे। ऐसा ना हो कि फना होने से पहले वो डायन ही तय खाने से आजाद हो जाए। और मैंने खदशा जाहिर करते हुए उससे कहा तो वह जल्दी से पुरउम्मीद लहजे में बोला, नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, तुम बेफिक्र हो। मैं आज ही अपने कारिंदों को हदायत करके तय खाने के दरवाजे पर पहरे बिठा दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं उलझन अमीर सोच में मुस्गर्क हो गया। मुझे अब जगदोश से ज्यादा रानी का खतरा महसूस होने लगा और मैं पहले ही चाहता था कि जगदोश से पहल किसी तरह रानी का खात्मा हो जाए, क्योंकि खदशा था कि अगर एक बार रानी जवाब, जो अब एक खौफनाक और खून अशाम चुड़ैल बन चुकी थी, वो तय खाने से बाहर निकल आई तो चौधरी परवेज तो अपनी जान से जाना ही, मेरी और सोहनी के जानों को भी खतरा लाहक हो जाता। क्या सोचने लगे बालक? मुझे पर सोच गहरी खामोशी में पाकर चौधरी परवेज ने पूछा और मैं उसे क्या जवाब देता। मैं खुद गोम में मुब्तला था। चौधरी साहब, अगर आप इस डायन को कैद में ही रखना चाहते हैं तो यही सही, मैं अब चलता हूँ। जगदोश जैसे ही मुझसे भिड़ने की कोशिश करेगा, मैं उससे मुकाबला करने की कोशिश करूंगा। तुम अब किधर जाओगे? उसने अजीब से लहजे में मुझसे पूछा। तो जाने क्यों, मुझे अपने वजूद में सरसराहट सी उतरती महसूस होने लगी। मैं अपने घर जाऊंगा, मगर हमने तो सुना है वहां तुम्हारे गांव के लोग तुम दोनों के खून के प्यासे हो रहे हैं। वो एक नजर सोहनी के चेहरे पर डालते हुए मुझसे बोला। उसकी बात दुरुस्त थी। गांव वालों ने सोहनी के बाप मुरादे को हलाक कर डाला और मेरे लिए अब अपने गांव जाना खतरे से खाली ना था। यूं तो मैंने सोच रखा था कि यहाँ से सीधा चौधरी हशमत अली खान की हवेली में ही जाऊंगा, मगर ये बात मैं चौधरी परवेज को बताना नहीं चाहता था कि कहीं फिर मेरी तरफ से दोबारा गलतफहमी का शिकार हो जाता। क्या पता चौधरी परवेज अभी तक चौधरी हशमत अली खान को अपना दुश्मन समझ रहा हो, अगरचे मैंने उसके दिल साफ करने की कोशिश की थी। बहरतौर मैंने फीकी मुस्कुराहट से कहा, अल्लाह की जमीन बड़ी है, कहीं तो पनाह मिल ही जाएगी हम दोनों को। ये कहते हुए मैंने एक नजर अपने साथ खड़ी सोहनी की तरफ देखा। तुम कहीं चौधरी हशमत अली खान के हाथ तो नहीं जा रहे? चौधरी परवेज ने मेरी तरफ भांगती हुई नजरों से देखते हुए पूछा। तो मैंने एक लम्हे के लिए चौंक सा गया और फिर साफ गोई से असबात में अपना सर हिला दिया। वो नहीं, मेरे सर की असबाती जुम्बश पर एक सरसराती हुई हमकारी भरकर बोला, ठीक है, मगर चौधरी हशमत अली खान को मेरा एक पैगाम दे देना कि हमें गलतफहमी हुई थी, हो सके तो हमें वो माफ कर दे। और मैं उसकी बात पर एक यकदम खुशी से बोला, सच चौधरी साहब, हाँ बिल्कुल सच, अब तुम जाओ। चौधरी परवेज ने इसरार भरी मुस्कुराहट से कहा और मैं सोहनी को लेकर खुशी खुशी चौधरी हशमत अली खान की हवेली की तरफ बढ़ गया। वहां पहुंचा तो हवेली का नक्शा ही बदला हुआ था। चौधरी हशमत अली खान और उसका गबरू बेटा खावर अली खान अपने मसला कारिंदों के साथ चौधरी परवेज की हवेली पर हल्ला बोलने की तैयारियां कर रहे थे। मैं परेशान हो गया और जल्दी जल्दी चौधरी हशमत अली खान को सारी कथा सुना डाली कि चौधरी परवेज के दिल से अब गलतफहमी दूर हो चुकी है, लिहाजा उन्हें रानी के डायन बनने और चौधरी परवेज के बड़े भाई चौधरी नियाज की हलाकत के बारे में भी बता दिया। और मेरी बात सुनकर चौधरी हशमत अली खान के चेहरे की सुर्खी मामूल पर आने लगी, मगर उसके बेटे खाबर का तैश फिर भी कम ना हुआ और वो अपने बाप से बोला, अब्बा जी कुछ भी हो, चौधरी परवेज को सबक सिखाना जरूरी है। उसने आप पर बिला वजह कातराना हमला करने की जुर्रत कैसे की? उसने हमारी गैरत को ललकारा है। मैं उसके खतरनाक अज़ाइम जानकर परेशान हो गया। अलबत्ता उसके बाप से उसे समझाते हुए नरम लहजे में बोला, ओए खाबर पुत्र, अब मट्टी डालो, इससे अभी अपनी गलती का एहसास हो चुका है। नहीं अब्बा जी, ये क्या बात हुई? अगर उसकी गलती से आपको खुदा ना ख्वास्ता कुछ हो जाता तो? खाबर का गुस्सा किसी तौर पर भी कम नहीं हो पा रहा था।
ओए पुत्र, जिंदगी और हयाती सोने रब से हाथ है, किसी इंसान की ताकत नहीं, बस अब भूल जा। बाप के समझाने पर मैंने देखा कि उनका बेटा खामोश तो हो गया था, मगर उसका अंदरूनी उबाल किसी तौर पर कम ना हुआ और मैं अंदर से डरने लगा कि कहीं अगर ये लोग आपस में लड़ पड़े तो जगदोश को अपनी चाल चलने का मौका मिल जाएगा। और कोई बैद नहीं कि इस खून खराबे और जंगी बजदल में कोई ऐसा भयानक वाकया भी पजीर हो जाता जो पूरे इलाके को स्याह आंधी में लपेट देता। मैं जब खावर को डराने की गर्ज से चौधरी हशमत अली खान को रानी के डायन बनने और शैतान जगदोश के बारे में बताया तो खावर को मेरी बात का जरा बराबर भी यकीन ना आया और वो मुझे गुस्सीली नजरों से घूरता हुआ पांव पटक कर चला गया। मैंने चौधरी हशमत से दरख्वास्त की कि हमें अपने गांव में पनाह दे, क्योंकि मेरे गांव वाले मेरी और सोहनी के जान के दुश्मन बन चुके हैं। चौधरी हशमत अली खान ने यहाँ मेरी भरपूर मदद की और फिर उसने वहीं अपनी हवेली के करीब में अपने एक मज़ार खुशी मोहम्मद के घर में मुझे रहने को कहा और मुझे अपने बूढ़े ताया और ताई को भी वहीं फरोकश होने को कहा। मैं खुशी से फूला नहीं समाया, मगर चौंका अभी मेरे अपने गांव जाना खतरे से खाली न था, इसलिए उस भले मने इंसान ने मेरी ये मुश्किल भी हल कर डाली। अपने चंद आदमी भेजकर ताया और ताई को यहाँ बुला लाने का हुक्म सादर कर दिया। ताया और ताई आ चुके थे और मैंने उन्हें दिल में जबर करके रानी के मुतल्लक महज इतना ही बताया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ताया ताई बेचारे पहले ही सदमे से नढाल थे। ये खबर सुनकर वो मजीद बेहाल हो गए। मैंने और सोहनी ने उन्हें बेमुश्किल संभाला, मगर दोनों ही अब जिंदा लाश की मिसल हो गए थे। उधर मेरा और सोहनी का एक छत तले रहना मायूब साबित हो रहा था, मगर वो कहाँ जाती, उसका दुनिया में अब अल्लाह के सिवा और कोई न रहा था। चौधरी हशमत ने हमें फौरन शादी का मशवरा दिया और ये काम भी बखूबी अंजाम पदीर हुआ। सोहनी अब महबूबा के बाद मेरी बीवी बन चुकी थी। हम दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे, मगर अब भी हमारी खुशियों को जैसे गहन लगा हुआ था। उसकी वजह यह थी कि जगदोश का खतरा अब भी उसके सर पर नंगी तलवार की तरह लटक रहा था। अचानक मुझे एक रोज रूह फरसा इतला मिली। चौधरी परवेज की हवेली में चंद नामालूम मसला अफराद ने हमला कर दिया और ये हमला उसकी हवेली के तय खाने पर मुतय्यन उसके मुहाफिजों पर किया गया था। उन नामालूम हमला आवरों ने बाद में तय खाने का दरवाजा खोल दिया। रानी जो अब जगदोश के काले मंत्र की वजह से एक खून अशाम डायन बन चुकी थी, आजाद होते ही उसने सबसे पहले अपनी इज्जत के लुटेरे चौधरी परवेज पर हमला किया और उसे हलाक कर डाला। चौधरी परवेज के काले करतूतों का यही अंजाम होना था, मगर अब मुझे खुद से ज्यादा सोहनी की तरफ से तशवीश लाहक होने लगी, क्योंकि वह सरापा इंतकाम बनी हुई थी। सोहनी को अपनी मोहब्बत का कातिल समझते हुए थी, मगर मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि आखिर ये किसकी हरकत थी। अचानक मेरे जहन में चौधरी हशमत अली खान के बेटे खावर का नाम उभरा और मैं पहले ही ये अंदाजा लगा चुका था कि चौधरी परवेज अली की हवेली के तय खाने के मुहाफिजों पर हमला और बाद में तय खाने का दरवाजा खोलकर रानी को आजाद करने की यह हरकत दानिस्ता पहले से सोची समझी स्कीम का ही नतीजा थी। और ये लर्जा खेद हकीकत खावर ही अच्छी तरह जानता था कि रानी चौधरी परवेज के खून की प्यासी हो रही थी। यकीनन ये हमला उसने इसी मकसद के लिए करवाया होगा, ताकि रानी आजाद होते ही सबसे पहले चौधरी परवेज का खून काट डाले। अगर ऐसा था तो खावर ने इंतकाम में अंधा होकर एक बहुत बड़ी और संगीन गलती की थी, जिसका खमियाजा अब हमारे अलावा जाने किस किस को भुगतना पड़ता। बहरतौर अब मुझे पहले से ज्यादा मुहतात होने की जरूरत थी। यूं कि मैंने जरिया मुआश के लिए चौधरी हशमत अली खान की जमीनों पर ट्रैक्टर चलाने की नौकरी हासिल कर ली, मगर अब रानी के आजाद होते ही मुझे ये नौकरी करना भी मुश्किल हो नजर आ रही थी। मैं और सोहनी अब दोहरे तिहरे खतरात का शिकार होने लगे। एक खतरा हमें जगदोश की तरफ था, दूसरा रानी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी अब एक बार फिर मुतलातम खेज तूफानों की जिद में आने वाली थी, मगर मैंने कब तक हिम्मत हारना सीखा था। ताहम अब मैं संजीदगी से नकल मकानी के बारे में सोचने लगा। मेरा इरादा शहर जाकर बसने का था। मुझे इस बात की तसल्ली तो थी ही कि जब तक सोहनी मेरे साथ थी जगदोश की हकीकत कुछ भी न थी। वक्त गुजरने के साथ साथ वो अपनी मौत आ मार सकता था, क्योंकि सोहनी को हासिल किए बगैर उसका अमर साधना वाला शैतानी मंसूबा अधूरा ही था। इसीलिए मैंने यही सोचा था कि अब जगदोश को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए और मुझे उसे तलाश करने की चंदा जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं उसके पीछे नहीं था, बल्कि वो खुद मेरे ताक़ब में था और मेरे होते हुए वो सोहनी को हाथ भी लगाने की जुर्रत नहीं कर सकता था। एक रोज मैं जल्दी खेतों से घर लौट आया। घर दाखिल हुआ तो मुझे हैरत का एक शदीद झटका लगा। रानी घर पर मौजूद थी और
ताया ताई के चेहरों पर खुशी के डोंगरे बरस रहे थे, मगर बेचारी सोहनी के चेहरे का रंग पीला पड़ा हुआ था और मुझे देखते ही मुझसे लिपट गई और मैंने खौफनाक नजरों से रानी को घूरा और गसीले लहजे में कहा, तू यहाँ क्या करने आई है? फौरन दफा हो जा यहाँ से। ताया ताई ने जो ये सुना तो मुझ पर बरहम हुए। पुत्र, तू पागल तो नहीं हो गया? ये क्या कह रहा है तू? रानी को नहीं पहचान रहा? मेरे ताया ने हैरत से मुझे मुखातब करते हुए कहा, ताया अब्बा, ये रानी नहीं है, एक डायन है जो अब हमारी जान की दुश्मन बन चुकी है। मैंने रानी को गसीली नजरों से घूरते हुए ताया से कहा तो ताई जैसे पहले ही मुझ पर उधार खाए बैठी थी, फौरन मेरे दवारे हो गई। अकल को हथपाश होके यह क्या बकवास कर रहा है तू? मैं सही कह रहा हूँ ताई, ये रानी नहीं है, उसकी रूह है वो रानी के बेस में यहाँ आ गई है और उसे उस मरदूद शैतान जगदोश ने चुड़ैल बना डाला है। मैंने ताई को समझाने की कोशिश की। उधर मक्कार रानी जो इस वक्त अपना डायने वाला भयानक रूप बदले इंसानों वाले रूप में थी, एकदम ज़ारो तार रोने लगी। ताई और ताया बेचारे परेशान हो गए। उन्होंने उसे फिर अपने साथ चिमटा लिया और वो ताया मुझसे मिन्नत करते हुए बोली, पुत्र शौके, ये तू क्या कह रहा है? रानी का तुझसे आखिर कौन सा खुदा के वास्ते बैर है जो तू इसकी जान का दुश्मन बना हुआ है? अगर तू हमसे खुश नहीं है तो हम वापस चले जाते हैं। ताया की बात सुनकर मैं तड़प कर बोला, नहीं ताया, आप ये बात नहीं है। मैं कुछ कहते कहते रुक गया। उन्हें समझाना बेसूद था। उनकी अकलों पर पर्दे पड़ चुके थे। रानी जैसी भयानक और इंतकाम की मारी डायन का असली रूप अभी उन्होंने नहीं देखा था और मैं उन्हें समझा भी नहीं पा रहा था और मेरे लिए ये बड़ी मुश्किल और खतरनाक सूरत हाल थी।